Okay, so Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to study another SLO which is 1.3.2, differentiate between atoms and molecules, atoms and ions, molecules and molecular ions, ions and free radicals. Okay, so let's start with it. Yes, here you can also see SLO 1.3.2, differentiate between atoms and molecules. So now we are going to cover this difference between atoms and molecules. Okay, so yes, now can you observe the difference here between the atoms and molecules? Okay, so you can see that here in the structure of an atom there are electrons, yes, which is present in the nucleus. So these are the neutrons. All right, so these are the electrons which are revolving around the nucleus. These are the electrons, these are the neutrons, these are the protons, right? These are the protons. Here you can see that molecules, these are the atoms. Okay, this one atom and these another atoms, means you can observe here that there are two different types of atoms are there, right? So here, from here, what is the conclusion that okay, so atom consists of, that means that atom consists of subatomic particles, subatomic particles which are electron, proton and neutron. Okay, so means the composition of an atom is electron, proton and neutron. Okay, what about the molecules? So that means you can observe here that the molecule consists of consists of two or more different atoms, different atoms or similar atoms, similar atoms combined chemically, combined chemically forms the molecule. Okay, I think now you are clear about the atoms and molecule here. Okay, now we have a different points here. Differentiate between atoms and molecules. Okay, the very first difference is the smallest unit of an element, the smallest unit of an element that retains its chemical identity. Okay, what does mean by this point? This point means, for example, if you have this gold bar, right? That is gold bar. Okay, now this gold bar means this, it's made up of the which element? It's made up of the gold element, Eu element. Now, if it is an element of the Au gold, so all the elements which are present in the Au element would be of gold, right? So these are the atom of Au. Au means gold, right? So that means the smallest unit of an element that retains its chemical identity. So atom is the smallest unit of an element. Now what is a molecule? A group of two or more atoms chemically bonded together. Means when two or more different atoms, just like this, we can draw the structure here. When two or more, okay, if for example if you have this one element or one atom, and if it will combine with another element or another atom, it will form a molecule, right? Okay, the molecule, the atom would be of similar type. For example, if it's the one atom, okay, now it will combine with another atom in this, in which form? Just like this, it would be the same, or it might be the difference, like if one atom, another atom, when they will combine just like this, just like this. Okay, okay, there is another example here. You can see in the fate simulation.
Okay, now this is the structure of an atom. All right. So we have to build, as we know that atom consists of the subatomic particles. So what are the subatomic particles? Protons, neutrons, and electrons. Okay. So let's create a atom. Let's build an atom. All right. So we are going to build the atom of beryllium, right? So yes, beryllium. The atomic number of beryllium is 4. So 4 protons. 1, 2, 3, 4. Done. And how many electrons? 1, 2, 3, 4. Okay, you can observe here it's a neutral atom. Neutral atom means, okay, in which number of electrons and protons are, okay. So as we can see here that we have the structure of an beryllium atom, in which consists of the electrons, protons, and neutrons, right? Okay, now we have a molecule. Okay, now as I told you that molecule maybe consist of the similar type of atoms, or it may be a different types of atoms chemically combines together. For example, okay, here you can see here one hydrogen and two hydrogen. They will form a H2 molecule. You can see here the structure like this. So that is a molecular hydrogen. Okay, the 3D structure of the molecular hydrogen. Okay, if the molecule can also be when different atoms combines chemically. For example, if you have one type is hydrogen, another type is H2O, just like this, one hydrogen here and one hydrogen here, and it will form the structure of water molecule. So it is also molecule. Okay, in this way the molecule will be form of when different atoms combines chemically. Okay, now I hope you are very much clear about the difference between an atom and a molecule. Okay, now let's move here. Okay, the next point is that yes, an atom consists of protons, neutrons, and electrons, and made up of two or more atoms, same or different elements. Means that a molecule can be different types of element, or it might be the similar type of element. As okay, carbon dioxide. We have another example, carbon dioxide. Yes, you can see here carbon, one carbon atom, and we have two oxygen atom. Okay, as you can also see here carbon monoxide is formed, like one carbon, one oxygen, two different atoms combine and form a molecule which is a carbon monoxide. In this way they will form a molecule. Okay, if we have another molecule, if you want to build another molecule just like this, carbon dioxide. Now the 3D structure of carbon dioxide would be look like this. One atom of carbon and two atom of oxygen combines together and forms a carbon dioxide molecule. Existence cannot exist freely in most cases, right? Except noble gases. So as you know that atom always exists in a molecular form, just like this N2. You will never find N just like this, because it's a nitrogen atom and it is highly reactive. अगर ऐसा होता कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन आपको ऐसे मिलता इन द फॉर्म ऑफ एटम, तो फिर तो हर जगह रिएक्शंस हो रहे होते हैं, एक्सप्लोजन हो रहे होते हैं, है ना? बट आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और हम व्हेन वी टेक द ब्रीथ, तो क्या नाइट्रोजन जाता है? नाइट्रोजन जी, ऑब्वियसली नाइट्रोजन जब हम सांस लेते हैं तो आपके पास ऑक्सीजन ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो, तो नाइट्रोजन भी इनहेल करते हो। क्योंकि नाइट्रोजन आप N2 की फॉर्म में इनहेल करते हो, तो ये आपकी बॉडी में कोई रिएक्टिविटी शो नहीं करता। जैसे आप इनहेल करते हो, सो ये वैसे ही आप अपनी बॉडी से एक्सहेल भी कर देते हो। ठीक है, तो हमेशा आपके पास कोई भी आपके पास अगर एटम होगा तो इट विल एग्जिस्ट इन इन दिस फॉर्म N2, O2, Cl2। कभी भी आपको ये ऐसे नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जब ऐसे मिलते हैं, कभी भी एटम अगर आपको इस तरह से मिल जाएगा इन द एटॉमिक फॉर्म, तो वो हाईली रिएक्टिव होगा। क्यों रिएक्टिव होगा? क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एटम रिएक्टिविटी क्यों शो करता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है। अगर तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या है, वो स्टेबल है, तो वो कोई केमिकल बॉन्ड बनाएगा नहीं। अब यू हैव दिस नोबल गैसेस, तो नोबल गैसेस में क्या है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, बिकॉज द नोबल गैसेस हैव कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दैट इज द रीजन दे डू नॉट मेक अ केमिकल बॉन्ड विद एनी अदर एलिमेंट और एनी अदर एटम। लेकिन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट फ्रीली एज अ स्टेबल कंपाउंड, तो मॉलिक्यूल जो है वो एग्जिस्ट करता है फ्रीली एंड मेक अ स्टेबल कंपाउंड। स्टेबल कंपाउंड मीन्स यू हैव अ H2O, तो ये H2O ने क्या किया है, दो एटम्स, डिफरेंट टाइप्स के एटम्स ने मिलके एक मॉलिक्यूल बनाया है, वो स्टेबल है। अब इसको बॉन्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत, क्योंकि इसका ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ऑलरेडी ऑक्टेट कैसे कंप्लीट है, फॉर एग्जांपल यू हैव दिस H2O स्ट्रक्चर, तो अब इसका कैसे कंप्लीट है, देखिए एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो मीन्स इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। अब ये आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। जब ये शेयरिंग करेंगे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब दोनों का हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड है। अब H2O रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो examples of the atoms are hydrogen, oxygen, sodium, chlorine, and here we have H2O2, H2O, CO2. All right. So these are the difference between the atoms and the molecules. Okay. Now another difference we have is number B. We have difference between atom and ions. Okay. Now before we move to the difference atoms and ions, what are the ions? Ions है क्या? So as we know that in a neutral atom we have a neutral atom is electrically neutral. भाई atom क्या होता है, atom is electrically neutral element or neutral substance or neutral species. The number of electron is the same as the number of protons. So in an atom always the number of electrons equals to the number of protons. For example, if you have a sodium atom, okay, if you have a sodium atom which is the atomic number is 11, means that in sodium we have 11 protons and we have 11 electrons. Okay, you can see here that we have equal number of protons and equal numbers of electrons. That's why it is a stable, a neutral atom. So neutral atom means, or a neutral atom means when we have equal numbers of electrons and protons. But if it is ion means that it must have the greater number of protons or it must have the greater number of protons. अब यहाँ पे मैंने कहा ग्रेटर नंबर ऑफ प्रोटोन, तो प्रोटोन ऐसा नहीं होता कि आपने डाल दिया प्रोटोन, प्रोटोन कभी ज़्यादा नहीं होते, प्रोटोन जितने हैं उतने ही रहते हैं, लेकिन चार्ज प्लस का आ जाता है या नेगेटिव आ जाता है। वो क्यों आता है, एज यू कैन सी दैट इफ़ वी हैव अ सोडियम पॉजिटिव मीन्स दैट यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है हमने, इलेक्ट्रॉन लूज किया है। जब लूज करेंगे तो आपके पास अब कितने प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पे यू हैव 11 प्रोटॉन्स एंड यू हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि आपने एक लूज किया है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, अब यहाँ पर आपके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं। इन दैट केस प्रोटॉन ज़्यादा हो गए हैं, तो क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज था, तो यहाँ पे आपके पास सोडियम पे प्लस चार्ज है। और क्योंकि यू हैव लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो यहाँ पे आपके पास +1 चार्ज है। और 1 को आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, तो आप 1 को नहीं लिखते, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया सोडियम। ओके, सो एन आयन इज अ चार्ज एटम है। आयन क्या है, एक चार्ज एटम है। इलेक्ट्रॉन्स आर आइदर एडेड और टेकन अवे फ्रॉम दैन एटम, ठीक है। या तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करवा दिया है या आपने उसको रिमूव करवा दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अगर प्लस पॉजिटिव चार्ज है तो मीन्स आपने प्रोटॉन्स ऐड करवाए हैं। प्रोटॉन्स आप कभी ऐड नहीं करवाते, आप क्या करते हो, या तो इलेक्ट्रॉन्स ऐड करवाओगे। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ पे कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे कि क्लोरीन है, ठीक है, तो क्लोरीन अगर आपके पास है, Cl क्लोरीन, तो इसके पास कितना एटॉमिक नंबर है, 17 है। अब अगर आपने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया है। पहले इसमें क्या था, देखिए पहले इसमें 17 प्रोटॉन्स थे और कितने थे, 17 इलेक्ट्रॉन से, मीन्स दोनों क्या थे, इक्वल थे। बट नाउ
आपने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया। तो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो आपके पास यहाँ पे अभी 7 प्रोटॉन है, लेकिन आपके पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि जब 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो अब 17 और 18 इक्वल नहीं है, डिफरेंस है ना। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज था और ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया है तो आपने यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, क्लोरीन आयन। तो इस तरह से नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स कि इसमें अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है। अब कितने ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा होंगे उतना आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर यहाँ पे आपके पास एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो यहाँ पे -1 आता है, ठीक है। क्योंकि आप -1 1 को नहीं लिखते तो हमने सिर्फ माइनस शो किया है। अगर सिर्फ नेगेटिव साइन होगा तो वो ये शो करता है कि यहाँ पे जस्ट ओनली -1 साइन है। ओके, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मीन्स के आयंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी भी इक्वल नहीं होता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसी वजह से उस पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास +2 है, चार्ज आपके पास क्या आया है, +2 आया है, दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें बेरिलियम एटम की, जैसे कि यहाँ पे क्या है, बेरिलियम है। तो बेरिलियम में कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने प्रोटॉन्स होते हैं। तो आपके पास बेरिलियम में 4 ही प्रोटॉन्स होते हैं, क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4 है। तो 4 प्रोटॉन्स हैं और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है कि हमेशा कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो आप लूज करवाते हो या आप गैन करवाते हो। वो क्यों करवाते हो, क्योंकि आपको कोई भी एटम है उसका आपने ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है, ठीक है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन और हीलियम आपने डुप्लेट कंप्लीट करवाना होता है, मीन्स या तो उसका डुप्लेट कंप्लीट हो या उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो अब यहाँ पे आपके पास बेरिलियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से। बेरिलियम के पास जो है वो आपके पास यहाँ पे देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इधर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आई एम जस्ट शोइंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे आपके पास 4 प्रोटॉन्स हैं। तो जो 4 प्रोटॉन्स है, 4 ही आपके पास इलेक्ट्रॉन है। अब ये देखिए, इसका डुप्लेट कंप्लीट है, अब इसका यहाँ पे इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स कि यहाँ पे ये चाहता है कि इसके पास जो है मोर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, और 6 और आ जाएंगे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अब इसको कितने सारे इलेक्ट्रॉन कोई और क्यों देगा, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देगा ना। तो फिर ये क्या करेगा, सिंपली ये जो 2 अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको भी लूज कर देगा। जब ये लूज कर देगा तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जब डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये आपके पास ये स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरह से इसीलिए एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं या गेन करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बेरिलियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। तो जब 2 को लूज करेगा तो 4 प्रोटॉन्स आपके पास हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बचेंगे, 2 बचेंगे। तो देखें यहाँ पे ये इक्वल नहीं है, अब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है। पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो अब इसके ऊपर कितना बढ़ा है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं आपने, 2 किए हैं। तो आपके पास +2 बेरिलियम +2 इस तरह से चार्ज आ जाएगा। ओके, ओके, हियर यू कैन सी द एग्जांपल पॉजिटिव आयन। ओके, ये किसकी एग्जांपल है, सोडियम की। तो सोडियम के पास आपको पता है कितने आपके पास एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। मीन्स कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, पहले शेल में आपको पता है हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, आपने 2 फिल कर दिए। और उसके बाद दूसरे वाले में 8 आते हैं, आपने 8 फिल कर दिए। ये क्या है, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए ऐसे। ओके, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। मीन्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2 8 1। ओके, अब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अपने ऑक्टेट में कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो अब 8 इसको पीछे कौन 7 कौन देगा, 8 कंप्लीट करने के लिए क्या कोई आएगा और उसको 7 इलेक्ट्रॉन देगा, नहीं देगा। तो इसके लिए क्या बेटर है, इसको स्टेबल होना है तो क्या करे, ये एक इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में है ये उसको लूज कर दे। जब लूज कर देगा तो पीछे इसके पास 8 रह जाएंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी है, ये पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। तो पहले क्या थे, 2 8 1, अब कितने बचे हैं, 2 और 8। मीन्स आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट क्या है, अब कंप्लीट है। क्योंकि इसने लूज कितने किए हैं, एक लूज किया है। तो अब ये क्या बन जाएगा, Na प्लस। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम एन एटम if the okay the atom has more protons than electrons, its overall चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव है। और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो ये क्या है, सोडियम आयन। ओके, अनदर एग्जांपल इज नेगेटिव आयन। अब आपके पास क्या है, ऑक्सीजन है। इफ यू हैव द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, सो यू कैन सी है इन द फर्स्ट शेल यू हैव 2 एटम्स, सॉरी इन एन एटम यू हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
और यहाँ आपके पास कितने हैं, 6 है। सो 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दो चाहिए, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो क्योंकि दो ही चाहिए तो मतलब इजी है, कोई भी दे सकता है। तो अब ये क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को गैन करके यहाँ पे देखें, पहले से इसके पास कितने थे, आउटर मोस्ट शेल में 6 थे, पहले ये था, ये था, ये और ये 6 इलेक्ट्रॉन से। अब इसने क्या किया है, दोबारा गैन कर लिया। तो जब गैन किए तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसने गैन किया है, और एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ गैन किया है, ये एक इलेक्ट्रॉन गैन कर लिया, और एक ये गैन किया। तो मतलब अब इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए। तो आउटर मोस्ट शेल में जब इसके पास 2 8 8 हो गए, तो दैट मीन्स इट इज अ स्टेबल नाउ। तो क्योंकि कितने गैन किए ऑक्सीजन ने, दो गैन किए, तो हम कौन सा चार्ज आएगा, -2 का। पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, प्रोटॉन्स कितने थे, इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, बिफोर प्रोटॉन्स फर्स्ट कितने थे, क्योंकि इसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है। तो 8 इसके पास प्रोटॉन्स है, ठीक है। और फिर अब क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, वी विल राइट लाइक दिस, बिफोर 8 प्रोटॉन्स है, और फिर 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है, बट आफ्टर ऑक्सीजन विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो अब नाउ उसके पास 8 प्रोटॉन्स है एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो विच इज़ नॉट इक्वल। तो इक्वल नहीं है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन चार्ज ज़्यादा है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, -2। ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ओके, सो ये इफ एटम्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केटायन, सो सी, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर क्या आता है, चार्ज केटायन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव सोडियम, तो सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस पर क्या, किस में चेंज हो गया, Na पॉजिटिव में। तो ये क्या है, केटायन, केटायन, इसको क्या कहेंगे हम, केटायन। तो देखो आप टी, कुछ शेप टी की ऐसे पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव साइन भी ऐसे बनाते हैं। तो मीन्स पॉजिटिव साइन आप ऐसे बनाते हो, तो आप यू, इफ इट इज अ पॉजिटिव, तो दैट मीन्स इट इज अ केटायन। केटायन में क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायन, जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नहीं, एटम इलेक्ट्रॉन गैन करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, एनायन। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू हैव क्लोरीन, तो क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल एटम है। अब नाउ इफ इट विल गैन द इलेक्ट्रॉन, तो इट विल बी Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एनायन। एनायन मीन्स N shows the negative sign, तो negative means it has gain an extra electron, तो उसने अपना इलेक्ट्रॉन गैन किया है ताकि क्या कर सके, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। ओके, अब यहाँ पे देखिए, केटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आया है जब उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। नेगेटिव एनायन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गैन किए हैं। अब नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई डू एटम्स गैन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, तो एज टू अचीव स्टेबिलिटी by having a completely filled valence electron shell stable noble gas electronic configuration. As I told you, कि just like the human beings, we, some people are poor, some people are rich. तो जो पुअर हैं वो क्या करते हैं, दे वांट्स टू बी टू रिच, तो वो मेहनत करते हैं। अब जो रिच है उनको तो इतनी एफर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो इसी तरह से जो एटम होते हैं उन वो भी मेहनत करते हैं, ताकि क्या उनकी क्या अचीवमेंट होते हैं, लाइक हम लोग वी डू हार्ड वर्क टू गेट सक्सेसफुल इन लाइफ, ठीक है, कुछ भी बड़ा, लाइक कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो अब उनके लिए क्या स्ट्रगल है कि वो, उनको अपने आउटर शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो उसके लिए फिर वो जितने अगर वो केमिकल बॉन्डिंग बना सकते हैं, मीन्स वो शेयरिंग कर सकते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग भी करते हैं। अगर वो उनका ट्रांसफर करने से इलेक्ट्रॉन, उनको स्टेबिलिटी मिल रही है, तो वो भी करते हैं। मीन्स के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना इज अ सक्सेसफुल फॉर द यू नो फॉर एन एटम। तो उनकी सक्सेस कहाँ है एटम की, अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लेके आना, कैसे भी करके। ओके, अब यस, हियर यू कैन सी नियोन विच इज अ नोबल गैस। तो नियोन, अब वो कह रहा है मोर इलेक्ट्रॉन सर, वो कह रहा है नो थैंक्स आई एम फुल, भाई वो फुल है, उसको ज़रूरत ही नहीं है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती। ओके, नाउ यू हैव नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन एटम्स एंड आयन। सो एटम क्या है, एटम द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है। ओके, एन आयन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विद पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अभी आपने देखा कि कोई भी एटम जब लूज कर देता है इलेक्ट्रॉन को या गेन करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसमें कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज मीन्स के वो क्या होगा, केटायन, और नेगेटिव चार्ज मीन्स के वो क्या हो सकता है, एनायन।
ओके। तो चार्ज कैसा आता है, न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पे एटम क्या है, नो चार्ज, न्यूट्रल है, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मींस एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं। बट आयन के अंदर हैज चार्ज ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मीन्स ये क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल होंगे। न्यूट्रल एटम जैसे कि आपके पास यहाँ पे क्लोरीन है तो आपको इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बट अगर आपके पास एनायन है, आयन है, तो या तो वो Cl नेगेटिव होगा या फिर सोडियम पॉजिटिव होगा, मीन्स इस तरह से होता है। ओके, फॉर्मेशन नेचुरली एग्जिस्ट इन एलिमेंट, ठीक है, तो वो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास गोल्ड का एलिमेंट है तो उसमें एटम नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आयन क्या करते हैं, फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये तब बनते हैं जब जब आपके पास एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या वो उसको गेन करता है। नेचुरली आयन एग्जिस्ट नहीं करते। अगर नेचर में नेचुरली आयन एग्जिस्ट करते तो हर वक्त रिएक्शन ही हो रहा होता। लाइक अगर आपके पास ये देखे सोडियम पॉजिटिव है, अगर इसको कहीं ना कहीं Cl मिल जाता है नेगेटिव तो उस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो मतलब सब एक दूसरे को अट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं। तो but ऐसा नहीं है। तो नेचर में हमेशा आपको न्यूट्रल एटम मिलता है, आयन नहीं मिलता। देन यू हैव एग्जाम्पल सोडियम, the example of an atom, the neutral atom, then chlorine, and the example of ion is sodium ion, Na positive and Cl negative. Okay, the next difference we have is differentiate between molecule and molecular ion. Okay, that's also very simple. अब देखिए, a group of, what is molecule? A group of two or more atoms bonded together with no overall charge, कोई चार्ज नहीं है। अब जैसे आपके पास H2O, तो ये न्यूट्रल है ना, इस पे कोई चार्ज है नहीं है। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे HNO3, क्या इस पे कोई चार्ज है नहीं है। ओके, H2SO4 कोई चार्ज है नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इन सब के चार्जेस ने ओवरऑल चार्ज मींस के एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। अच्छा, अब अ मोलिकुलर आयन दैट हैज लोस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन एंड कैरीज अ नेट चार्ज, तो इस पे कोई ना कोई चार्ज होगा। मतलब कि इस अगर आपके पास यही वाटर था, पहले क्या था, ये न्यूट्रल था, अभी मैं इसको डिसोसिएट कर दूं तो व्हेन आई विल डिसोसिएट वाटर, तो ये किस में टूटेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अभी OH नेगेटिव ये आपके पास क्या है, मोलिकुलर आयन बन चुका है। इस दिस दिस HOH इज नोन एज द मोलिकुलर आयन, ठीक है, इसको आप कहते हैं मोलिकुलर आयन। अगेन अगर आपके पास क्या है H2SO4, सो अब अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ H2SO4 को, तो ये कैसे हो जाएगा, 2H मिलेंगे आपको और SO4 -2, क्योंकि यहाँ पे ये +1 चार्ज था, देखें तो +1 था कि दो एटम्स थे तो इसके ऊपर आपके पास H, दो एटम थे तो ये +2 था यहाँ पे, और यहाँ पे -2, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे थे। बट वहाँ पे व्हेन इट विल डिसोसिएट तो आपके पास क्या मिलेगा, SO4 -2, ठीक है, तो यहाँ पे -2 ही आएगा ऑलवेज, तो दैट इज अ मोलिकुलर आयन। ओके, ना HNO3, तो यहाँ पे भी जब ये ब्रेक डाउन होगा सो इट विल बी, ये H अलग हो जाएगा और आपको NO3 अलग, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, ये मोलिकुलर आयन है। ओके, द फॉर्मेशन फॉर्म बाय कोवलेंट बॉन्डिंग ऑफ एटम, ये क्या कैसे बनते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं मॉलिक्यूल आपके, जैसे अभी एज यू हैव एग्जांपल ऑफ H2O, तो H2O में हमेशा क्या बनेगा, O विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड विद द हाइड्रोजन एटम, तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। कोवलेंट बॉन्डिंग मींस शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस दैट हियर ऑक्सीजन, इन ऑक्सीजन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट शेल, 6 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको कितने चाहिए, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अब हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एक है, इसको भी एक चाहिए अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो अब ये क्या करेगा ऑक्सीजन, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी शेयर करेगा, ये भी शेयर करेगा, और इस तरह से क्या बना लेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो अब इसका डुप्लेट कंप्लीट, इसका ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट। ओके, नाउ मोलिकुलर आयन फॉर्म्ड व्हेन अ मॉलिक्यूल गैन और लूज इलेक्ट्रॉन, तो वही कि जब वो इलेक्ट्रॉन गैन करता है या वो लूज करता है तो उस पर फिर वो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूलर आयन बन जाता है। फॉर एग्जांपल H2O है या फिर CO2 है, O2 है, यहाँ पे भी आपने यू कैन सी अमोनियम आयन है, ठीक है, नाइट्रेट आयन है, सल्फेट आयन है, SO4, तो ये सब क्या है, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द मॉलिक्यूलर आयन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, यस, डिफरेंशिएट बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है, आयन और फ्री रेडिकल क्या है। आयन, आई थिंक यू आर वेरी मच क्लियर अबाउट द आयंस। आयंस क्या होते हैं, जो जिसपे कोई भी एक न्यूट्रल एटम था उसने इलेक्ट्रॉन गैन कर लिए या इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो फिर वो क्या बन जाता है, आयन बन जाता है।
Okay here, so yes, atom or molecule with the positive or negative charge due to loss or gain of electron. For example, सोडियम, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ये सब क्या है? ये सब आयंस हैं। अब फ्री रेडिकल क्या है? एटम और मॉलिक्यूल विद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, मींस के आउटर मोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल Cl, यहाँ पे आप देखें, ये क्या है? जब आप इस तरह से ये बनाते हैं ना डॉट स्ट्रक्चर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस वो क्या है? किसी भी एटम में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, दैट मीन्स वो क्या है? वो फ्री रेडिकल है। अगर मैं इस तरह से नेगेटिव साइन शो करूं तो वो क्या है? आपके पास आयन है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आयन कब बनते हैं? जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे NaCl एक कंपाउंड था, तो Na के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 थे। Cl के पास कितने थे? 17 थे। तो Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा कंप्लीटली, तो इस पे Na पॉजिटिव आ जाएगा, इस पे Cl नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके पास अब कितने थे? 17 थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। तो अब क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगी? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। इसी वजह से ये NaCl कंपाउंड बना के कंपाउंड में रहते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट। लेकिन पॉइंट क्या था? कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया है और क्लोरीन ने कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है। बट ये कैसे बनते हैं? फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। ये कैसे होता है? कि कभी कभार रिएक्शन में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास यहाँ से यहाँ पे HCl है, इसको यही बनाते हैं, HCl है, तो अब क्या होता है कि कभी कभार इसको आपने ब्रेक डाउन करवाना है। जब आप इसको ब्रेक डाउन करवाएंगे, इस बॉन्ड को इसका ब्रेक डाउन करवाएंगे, तो अब क्या होगा कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब क्या करेगा? क्लोरीन जाते हुए अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, अपना अनपेड ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो जब वो लेके जाएगा इस तरह से, तो ये तब ये बनते हैं आपके पास फ्री रेडिकल्स। ठीक है, तो होमोलिटिक क्लीवेज मीन्स कि यहाँ से टूटेगा। अब ये, अब जब हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन भी ले जाएगा, तो दैट इज नोन एज द होमोलिटिक क्लीवेज। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इस तरह से फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ओके, जनरली स्टेबल इफ द आउटर शेल इज फुल और बैलेंस। ठीक है, तो आयन जो है वो स्टेबल होते हैं, जनरली स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। लेकिन ये हाईली अनस्टेबल होते हैं एंड वेरी रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अगर आपकी बॉडी में भी फ्री रेडिकल्स बन जाएं, तो फिर वो क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड से रिएक्शंस करते हैं और फिर वो कैंसर कोज करते हैं। तो फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्टिव होते हैं। ओके, एग्जांपल्स क्या हैं आयंस की? Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, और इसकी एग्जांपल क्या है? OH और Cl नेगेटिव, Cl ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर। अब आगे व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड आयंस? तो आयंस के पास जब भी कोई इस तरह से पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो वो क्या किसको शो करता है? वो आयंस को शो करता है। लेकिन इस तरह से आपके पास डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो वो किसको शो करता है? वो फ्री रेडिकल को शो करता है। Cl जस्ट लाइक डॉट, देन यू हैव Br। तो इस तरह का जब भी आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो किसको शो करता है? फ्री रेडिकल को। ओके, अभी वैस वी हैव डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट, कंपाउंड, एटम्स, आयंस। सो यू कैन सी है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? ये आपके पास AKUEP बोर्ड से ही लिया गया है, पास पेपर से क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपके पास MCQs भी आते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। सो ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ प्योर कंपाउंड? अब इसमें से वो पूछ रहा है कि ABCD, इसमें से प्योर कंपाउंड कौन सा है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आपके पास प्योर कंपाउंड नहीं है। अच्छा, कंपाउंड एक तो ये देखें, ये 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 क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ 2 एटम्स हैं। ये तो आपको नजर आ रहा है कि भाई 2 एटम्स हैं, लेकिन आपको कलर देखें, सेम है मीन्स के ये क्या है? ये मॉलिक्यूल हो सकता है, ये कंपाउंड नहीं हो सकता। कंपाउंड की रिकग्निशन क्या है? कि उसके अंदर डिफरेंट एटम्स होंगे। कंपाउंड की क्या रिकग्निशन है? डिफरेंट एटम्स होंगे। तो ये तो नहीं हो सकता, गलत। ओके, ये तो वैसे सिंगल एटम है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, डी ऑप्शन को देखें, कंपाउंड में हमेशा अभी आपके पास अगर एटम है, डिफरेंट एटम्स हैं, केमिकली बॉन्डेड हैं, तो लेकिन यहाँ पे देखें, ये एक तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये डिफरेंट तरह का स्ट्रक्चर बन रहा है।
तो ये भी गलत, ये भी नहीं हो सकता। अब इसको देखें, ये क्या है, सेम स्ट्रक्चर है, डिफरेंट टाइप्स के एटम हैं, ये भी एक इसमें डार्क कलर है विच शोज के डिफरेंट एटम्स कंबाइंड टुगेदर, बट सेम स्ट्रक्चर है, तो ये क्या होगा आपके पास, कंपाउंड होगा। तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये तीन नहीं होंगे, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 10 नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक ही ईबी बोर्ड में क्या होता है, एग्जाम स्पेसिफिकेशन। एग्जाम स्पेसिफिकेशन मीन्स कि आपके पास जब भी क्वेश्चन आएंगे अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न आएंगे। आपके पास पहला चैप्टर क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में आपके पास हमेशा 5 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ओके, यहाँ पे होते हैं CRQs एंड ERQs। ठीक है, इसमें सिंध बोर्ड में क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो वही सेम इसमें भी है, बस नेम चेंज कर दिया है, CRQ मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड ERQ मीन्स लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, बाकी चीज़ें वही है सब। हाँ, लेकिन सिंध बोर्ड थोड़ी सी, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, वो बहुत डिटेल में आपको 4-4 5-5 पेजेस के आंसर लिखने पड़ते हैं। और एक यू बोर्ड में आपको बहुत बहुत प्रिसाइज लिखना पड़ता है। तो मतलब एक यू ईबी बोर्ड इजी है, मुझे आई थिंक बहुत इजी है एज कम्पेयर टू द सिंध बोर्ड। तो इसमें आपको लिखना है बहुत टू द पॉइंट लिखना होता है आपने। अच्छा, यहाँ पे पहले क्या है, CRQs मीन्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर मीन्स जब भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा, पहले तो 5 MCQs आएंगे ही, ठीक है, और इसके बाद जब भी क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स का आएगा। 3 मार्क्स का आएगा मत मीन्स के 1 CRQ मतलब एक जो CRQ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होगा उसके कितने मार्क्स होंगे, 3 मार्क्स होंगे। अच्छा, जब 3 मार्क्स हैं तो आपको कितना लिखना है, इसमें से ERQ नहीं आएगा। जब भी आएगा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएगा और 3 मार्क्स का होगा। 3 मार्क्स का मतलब ये है कि आपके पास इस तरह से इट्स एग्जाम कॉपी होती है आपके पास पेपर, तो उसमें आपको आंसर लिखने हैं। अब आंसर यहाँ पे आपके पास लाइंस होंगी, ठीक है, इस तरह से। तो पहली बात तो आपने वहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। ओके, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास देखिए 1 मार्क का आंसर होता है तो आप कितनी लाइंस लिखते हो, 2 लाइंस लिखते हो। 1 मार्क का आंसर है तो 2 लाइन लिखनी है, ठीक है। 2 मार्क का आंसर होगा तो कितने लिखोगे, 4। और अगर 3 मार्क्स का आंसर है तो कितने लिखनी है, 6 लाइन लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 मीन्स आपको जस्ट 6 लाइन्स लिखनी है। 6 लाइन्स के ऊपर आप नहीं लिख सकते मीन्स 7th लाइन में आप आंसर नहीं लिख सकते, क्योंकि वो स्कैन ही नहीं होगा, तो उसका लिखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मीन्स आपने जो भी आंसर लिखना है वो प्रिसाइसली लिखना है। आपके जो वर्ड्स जो आप यूज़ कर रहे हो वो ऐसे होने चाहिए कि उसको वो 6 लाइन में ही वो आंसर आपका दे दे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अगर 3 मार्क्स का है तो मैक्सिमम आपने 6 लाइन्स लिखनी है। 6 लाइन से ज़्यादा लिखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो स्कैन ही नहीं होगा। मतलब 6 लाइन से कम लिख सकते हैं। अगर कोई आंसर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका आंसर 2 लाइनों का भी है, 3 लाइनों का भी है, तो कम लिख सकते हो, लेकिन 6 लाइन से ज़्यादा ऊपर नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, तो यहाँ से इसी से रिलेटेड हम एग्जाम स्पेसिफिकेशन भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो है वो ERQ नहीं आएगा। जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि उस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ऑलराइट, okay, if you have any confusion, कोई confusion है तो you can ask me. And till to here, please like, share and subscribe my channel, and thank you so much.